Well done is better than well said. Benjamin Franklin. Hello everyone. In today's class, firstly we'll do the questions from the previous lecture, and afterwards we will talk about our next 30 idioms and phrases, and then we'll end the lecture by learning a new word. Okay? So our first question is bitter pill to swallow. Options are to face the difficult situation bravely, B. An unpleasant fact that must be accepted, C. To do more than one's ability, D. To be determined to do something. The right answer is an unpleasant fact that must be accepted. Okay? If I talk about option number A, to face the difficult situation bravely, इसके लिए हमारे पास idiom क्या था? Bite the bullet. ओके उसने जैसे बुलेट को बाइट कर दिया था, वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन को ब्रेवली उसने फेस किया था. सो टू फेस द डिफिकल्ट सिचुएशन वी हैव द इडियम बाइट द बुलेट. टू डू मोर देन वंस एबिलिटी, इसके लिए हमारे पास इडियम क्या था? बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू. बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, अपनी एबिलिटी से ज्यादा करना. एंड टू बी डिटरमिन टू डू समथिंग, इसके लिए हमारे पास इडियम क्या था? bent on something or doing something. Okay, this is the idiom that we have for the option number D. Okay, our question number 2 is bet on the wrong horse. Bet on the wrong horse. Options are to misread the future, B. Done in secret, C. To begin to understand, D. To work hard. Bet on the wrong horse. The right answer is to misread the future. Done in secret, इसके लिए we have the idiom behind closed doors. Okay, behind closed doors हमने ऐसे किया था, closed doors में secret की बात होनी चाहिए. So behind closed doors we have the idiom done in secret. To begin to understand, it means जब आपको समझ आना शुरू हो जाता है, जब आपको light दिखने लगती है, it means begin to see the light. So we have the idiom begin to see the light for option number C. And to work hard. Work hard का क्या था? Beat one's ब्रेन आउट. बीट वंस ब्रेन आउट, इसके लिए हमारे पास क्या इडियम है? टू बीट वंस ब्रेन आउट. ये इडियम जो है हमारे ऑप्शन नंबर डी के लिए है, विच इज टू वर्क हार्ड. क्वेश्चन नंबर 3 इज बाक अप द रॉन्ग ट्री. बाक अप द रॉन्ग ट्री. ऑप्शंस आर टू ट्राई टू डू समथिंग दैट इज होपलेस और फ्रूटलेस. B is to make a wrong assumption. C. Active and energetic. D. Back to something that you don't want to do. The right answer is to make a wrong assumption. This is the right answer. Back up the wrong tree का क्या था? एक wrong assumption, wrong tree, wrong assumption करना. If I talk about option number A, to try to do something that is hopeless or fruitless, इसके लिए हमारे पास idiom क्या है? Beat one's head against the wall. Okay, beat one's head against the wall. इसके लिए हमारे पास ये वाला idiom है. Active and energetic, इसके लिए कौन सा idiom था? Ball of fire. ओके, बॉल ऑफ फायर जैसे बहुत एक्टिव होता है, एनर्जेटिक होता है. सो इसके लिए हमारे पास इडियम है एक्टिव एंड एनर्जेटिक के लिए हमारे पास इडियम है बॉल ऑफ फायर. ऑप्शन नंबर डी इज बैक टू समथिंग दैट यू डोंट वांट टू डू. ये क्या था? इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज बैक टू द सॉल्ट माइंस. ओके, बैक टू द सॉल्ट माइंस. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज बैक टू स्क्योर वन. Okay, back to square one. Options are to prepare for trouble, B. Two persons arguing angrily, C. To reach again the starting point, D. Extremely happy. Okay, the right answer is to reach again the starting point. जैसे square यहाँ से बनाया, यहाँ से start किया, यहीं पे आगे वापस. Okay, so back to square one का meaning क्या था? To reach again the starting point. और to prepare for trouble, इसके लिए हमारे पास idiom क्या था? Batten down the hatches. जैसे बॉस आगे trouble के लिए आप prepare रहो, so batten down the hatches. ये हमारे पास इडियम है टू प्रिपेयर फॉर ट्रबल. टू पर्सन्स आर्ग्यूइंग एंग्रीली, इसके लिए हमारे पास इडियम क्या था? बीट ईच अदर्स थ्रोट. ओके, बीट ईच अदर्स थ्रोट, एक दूसरे को मारो. सो बीट ईच अदर्स थ्रोट, इसके लिए हमारे पास ये वाला इडियम है. एंड एक्सट्रीमली हैप्पी, इसके लिए क्या इडियम था? कि हेवन में हम एक्सट्रीमली हैप्पी हैं. सो बी इन सेवेंथ हेवन. क्वेश्चन नंबर 5 इज बी ऑन द एज. बी ऑन द एज, जैसे कोई आप हाइट पे हो, बिल्कुल एज पे हो, तो आप क्या हो जाओगे? सो ऑप्शंस आर टू बी नर्वस और वरीड, बी वेरी हैप्पी, सी टू बी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, डी टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन. बी ऑन द एज पे हो तो आप क्या हो जाओगे? नर्वस और वरीड. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. बी वेरी हैप्पी, इसके लिए क्या था यहाँ पे? बी ऑन क्लाउड 9.
बी ऑन क्लाउड नाइन, टू बी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, समझ पाना बहुत मुश्किल है, सो बी एज मड be as clear as mud. Okay, so be as clear as mud is the right answer. So be as clear as mud. And then to start a conversation, जब आप conversation को start करते हो उसके लिए we have the idiom break the ice. Okay, break the ice. Break the ice is the right answer. So break the ice is the right answer. So now we'll talk about our next 30 idioms and phrases. So idiom number 271, wait a minute. So idiom number 271 is black and blue. Black and blue का meaning क्या है? Full of bruises and wounds. Full of bruises and wounds. Black and blue. Usage is he was beaten black and blue in the wrestling match. जैसे सिंपल सी बात है, अगर कोई किसी को मारता है तो वो नीला पड़ जाता है, नील पड़ जाते हैं ना उसकी बॉडी पे. सो फुल ऑफ वोन्स को हम क्या, कौन सा इडियम यूज करेंगे? ब्लैक एंड ब्लू. नील पड़ गया, नील पड़ गया. ओके, सो जब कोई मारता है तो बॉडी पे नील पड़ जाते हैं, निशान हो जाते हैं, तो उसके लिए वी हैव द इडियम ब्लैक एंड ब्लू. जैसे इसको बहुत ज्यादा मारा गया रेसलिंग मैच में, सो ही वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू इन द रेसलिंग मैच. So 272 is sail through something. Sail through something. What is the meaning of sail through something? Being successful in doing something without difficulty. Okay, sail through something का meaning क्या होता है? आप successful हो गए हो कोई चीज करने में बिना difficulty के. Okay, so usage is Neelam sailed through her final examinations and got highest grades in every subject. जो नीलम है उसको final examinations में, मतलब she sailed through her final examinations and got highest grades in every subject. उसने बिना difficulty के वो बहुत ज़्यादा successful हो गई थी, तो उस चीज़ के लिए हमारे पास idiom है sail through something. Okay. Idiom number 273 is mean business. Mean business, which means being serious about what you announce. Mean business क्या होता है? Mean business का meaning है कि जब आप कोई चीज अनाउंस करते हो उस चीज के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो. ओके, उसके लिए we have the mean business. mean मतलब बहुत सीरियस हो किसी चीज के लिए. Usage is by changing our policies and making you the CEO, you be mean business. क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो हमने पॉलिसीज यहाँ पे चेंज की हैं और जो हमने आपको CEO बनाया है यहाँ का, तो इट मीन्स हम बहुत सीरियस है उस बात पे. ठीक है, तो आपको ध्यान से काम करना है. सो मीन बिजनेस का हमारे पास मीनिंग है being serious about what you announce. Idiom number 274 is get the show on the road. Get the show on the road, which means putting up a plan or idea into action. ठीक है, किसी भी प्लान को आप जब एक्शन में लाते हो उसे हम बोलेंगे गेट द शो ऑन द रोड. ओके, जैसे रोड पे शो चल रहा है, एक्शन हो रहा है, सो वैसे हम याद रख सकते हैं. व्हाट इज द यूसेज? यूसेज इज नाउ दैट वी हैव फिनिश्ड आवर ट्रायल्स, लेट्स गेट द शो ऑन द रोड. अब हमने अपने ट्रायल्स को फिनिश कर दिए हैं, अब हम उसी चीज को एक्शन में लाएंगे. Idiom number 275 is to break the news. To break the news means to disclose information tactfully. Okay, इसका मीनिंग है कि ऐसी न्यूज बताना जो कि सुनने में बहुत आपको अच्छी ना लगे. Okay, so to break the news, which means to disclose information tactfully. What is the usage? Usage is I was devastated when the doctor broke the news to me. मैं बहुत ज़्यादा devastated हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई जब डॉक्टर ने मुझे एक ऐसी न्यूज़ बताई जो मुझे नहीं सुननी थी. Okay, so to break the news, it means ऐसे न्यूज़ में आता है ना ब्रेकिंग न्यूज़, और वो ब्रेकिंग न्यूज़ अच्छी नहीं है, हमने ऐसे याद रखना. 276 is to carry the day. To carry the day का मीनिंग है to be victorious. ठीक है, carry the day means victorious. आप जीत गए हो, it means you have carried the day. Usage, they had a bad start but the home team managed to carry the day in the end. उनका स्टार्ट अच्छा नहीं था, एक बुरा था, लेकिन होम टीम ने मैनेज कर दिया और वो विक्टोरियस बन गए. सो टू कैरी द डे, आप ही कैरी कर रहे हो, आप ही जीतोगे. Idiom number 277 is to bear the palm. To bear the palm means to win. Okay, to bear the palm means to win. Usage is Simon bore the palm in calligraphy. Okay, Simon bore the palm in calligraphy. जो साइमन है उसने वहां पे, मतलब साइमन जो था वो जीत गया है कैलीग्राफी में. ओके, टू bear the palm means to win. Idiom number 278 is to add fuel to the fire. To add fuel to the fire, which means
टू मेक द सिचुएशन वर्स, टू एड फ्यूल टू द फायर, मतलब आग में और फ्यूल एड अप कर रहे हो। इट मीन्स आप क्या करो, सिचुएशन को और वर्स अप कर रहे हो। यूसेज इज दिस सर्वे विल ओनली एड फ्यूल टू द फायर, जो ये सर्वे है ये सिर्फ इस सिचुएशन को और वर्स करेगा। सो टू एड फ्यूल टू द फायर मीन्स टू मेक द सिचुएशन वर्स। 279 इज वर्क लाइक अ चार्म, वर्क like a charm, which means to be completely successful or effective। जब आप पूरे सक्सेसफुल किसी चीज में हो जाते हो या इफेक्टिव होती है कोई चीज, उसके लिए हम यहाँ पे कौन सा इडियम यूज करते हैं, वर्क लाइक अ चार्म। यूसेज इज दिस मेडिसिन वर्कड लाइक अ चार्म एंड माई हेल्थ हैज ग्रेटली इम्प्रूव्ड, जैसे कोई भी मेडिसिन आपने खाई और आप बिल्कुल ठीक हो गए एंड यू बिकम फाइन। ओके, सो जो भी चीज इफेक्टिव होगी उस चीज के लिए हम यूज कर सकते हैं ये वाला इडियम, वर्क लाइक अ चार्म। इडियम नंबर 280 इज गोल्डन हैंडशेक, golden handshake, which means big sum of money given to a person when they leave a company or retire। देखो गोल्डन हैंडशेक क्या होता है, गोल्डन हैंडशेक जैसे गोल्डन गोल्ड है तो गोल्ड क्या होगा, ज्यादा, ठीक है, गोल्डन से हम याद रख सकते हैं गोल्ड, जैसे किसी ने हैंडशेक करके गोल्ड दिया, गोल्ड जो होगा उससे हम मनी को याद रख सकते हैं, ठीक है। सो एक बहुत बिग अमाउंट ऑफ मनी जब किसी पर्सन को देते हैं, जब वो कोई कंपनी छोड़ता है या वो रिटायर होता है, उस चीज के लिए वी कैन यूज द इडियम गोल्डन हैंडशेक। व्हाट इज द यूसेज, यूसेज इज द कंपनी गेव अ गोल्डन हैंडशेक टू एजेड एम्प्लॉय दिस ईयर, जो कंपनी है वो उन्होंने गोल्डन हैंडशेक अपने एम्प्लॉयज को दिया इस साल। ओके, इडियम नंबर 281 इज हैंग ऑन बाय फिंगरनेल्स, हैंग ऑन बाय फिंगरनेल्स। इसका मीनिंग है कंटिन्यूइंग टू डू समथिंग इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है और आप वही चीज कंटिन्यू कर रहे हो, वही चीज कर रहे हो, सो इसके लिए वी हैव द इडियम हैंग ऑन बाय फिंगरनेल्स। व्हाट इज द यूसेज, यूसेज इज विद द न्यू टेक्नोलॉजी टेकिंग ओवर, ओल्ड स्कूल बिजनेसमैन आर जस्ट हैंगिंग ऑन देयर फिंगरनेल्स। कहते हैं जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसकी वजह से जो ओल्ड स्कूल बिजनेसमैन है, जिनको नहीं पता है कैसे बिजनेस करना है विद द एडवांस टेक्नोलॉजी, सो वो बस इस डिफिकल्ट सिचुएशन में बस काम कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं काम करना, बट बहुत ज्यादा मुश्किल है। सो हैंग ऑन बाय फिंगरनेल्स का मीनिंग क्या है, कंटिन्यूइंग टू डू समथिंग इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। 282 is punch above one's weight, punch above one's weight, which means performing beyond ability। punch above one's weight क्या होता है, beyond ability, ability से भी ज्यादा होके परफॉर्म करना। usage he won the competition by punching above his weight इन द फाइनल्स, जैसे पंच अबव अपने वेट से ज्यादा काम करना, मतलब अपनी एबिलिटी से ज्यादा काम करना। सो जैसे उसने कंपटीशन जीत लिया बाय पंचिंग अबव हिज वेट इन द फाइनल्स। 283 इज मेक हेडवे, मेक हेडवे विच मीन्स प्रोग्रेस इन वॉट यू आर ट्राइंग टू अचीव, जो चीज आप अचीव करना चाहते हो उसमें प्रोग्रेस होना, उसे हम क्या बोलते हैं, मेक हेडवे। द पुलिस हैव मेड अ हेडवे विद देयर इन्वेस्टिगेशन, जो पुलिस है जो उनको इन्वेस्टिगेशन दी गई है उसमें उनकी प्रोग्रेस बहुत ज्यादा होगी। सो मेक हेडवे का मीनिंग है प्रोग्रेस इन वॉट यू आर ट्राइंग टू अचीव। 284 is sink your teeth in, sink your teeth into, which means doing something with a lot of energy and enthusiasm। बहुत ज्यादा एनर्जी और enthusiasm से जब आप कोई काम करते हो उसके लिए we have the idiom sink your teeth in। कौन सा है, sink your teeth into। So usage is he sank his teeth into the practice sessions to win the competition। उसने practice sessions में बहुत ज्यादा energy और enthusiasm से काम किया competition को जीतने के लिए। 285 is cut to the quick, okay, cut to the quick, which means hurting someone deeply or offending them। किसी को deeply आप hurt कर रहे हो, उस चीज के लिए we have the idiom cut to the quick। What is the usage? Usage is I was cut to the quick when my boss held me responsible for the fraud। जैसे यहाँ पे है cut to the quick means जैसे cut लग गया मतलब hurt हो गए। So hurting someone deeply, तो मैं I was cut to the quick, मुझे बहुत ज्यादा hurt हुआ था मैं तब जब मेरे बॉस ने मुझे रिस्पॉन्सिबल ठहराया फ्रॉड के लिए। ओके, सो cut to the quick, cut लग गया तो अब hurt हो गए, तो उससे हम इस idiom का मीनिंग याद रख सकते हैं। 286 is stand one's ground। stand one's ground का मीनिंग क्या होता है, मेंटेनिंग योर पोजीशन। आप ग्राउंड पे खड़े हो गए हो, इट मींस आप अपने पोजीशन को मेंटेन कर रहे हो। stand one's ground का मीनिंग है मेंटेनिंग योर पोजीशन। यूसेज इज he stood his ground in support of his friend in spite of several family interferences। जैसे यहाँ पे जितने भी फैमिली इंटरफियरेंसेस थी, जैसे स्टैंड ऑन ग्राउंड, हम ऐसे इसको हम इस पिक्चर से एग्जामिन कर सकते हैं, और जितनी भी फैमिली इंटरफियरेंस थी बट स्टिल वो अपनी पोजीशन को उसने मेंटेन किया।
ओके 287 इज फिश आउट ऑफ वाटर, वेरी इजी। फिश आउट ऑफ वाटर, जब भी फिश पानी के बाहर होगी वो क्या होगी, अनकंफर्टेबल होगी। सो फीलिंग अनकंफर्टेबल इन अनफैमिलियर सिचुएशंस, अनफैमिलियर सराउंडिंग्स में आप जब अनकंफर्टेबल हो जाते हो उससे हम बोलेंगे फिश आउट ऑफ वाटर। व्हाट इज द यूसेज, यूसेज इज बीइंग शॉर्ट, आई फील आई एम अ फिश आउट ऑफ वाटर इन अ बास्केटबॉल टीम। कहते हैं मैं शॉर्ट हूं और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था बास्केटबॉल टीम में। सो फॉर दैट वी हैव द इडियम फिश आउट ऑफ वाटर। 288 is be in one's bonnet, be in one's bonnet। bonnet बेसिकली होता है कि कैप सी होती है जो पूरे सर को कवर करती है, उसे bonnet बोलते हैं। सो मीन्स इसका मीनिंग है कैरिंग एन आइडिया विच कॉन्स्टेंटली ऑक्यूपाइज योर थॉट्स। कभी कभी होता है ना कि हमारे थॉट में लगातार कॉन्स्टेंटली एक आइडिया हमारे दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है, उसके लिए भी हैव द इडियम बी इन one's bonnet। यूसेज इज हाउ टू मूव बैक टू माई सिटी इज द ओनली बी इन माई bonnet। कैसे मैं अपनी सिटी में वापस जाऊं, यही अभी मेरे कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में यही आइडिया चल रहा है। सो बी इन वंस bonnet, उसका मीनिंग क्या है कि ऐसा आइडिया कैरी करना जो कॉन्स्टेंटली आपके थॉट्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। ओके विद बेल्स ऑन, with bells on, so meaning is when you are delighted and eager to go somewhere। okay जब बहुत ज्यादा delighted हो, बहुत ज्यादा खुश हो, बहुत ज्यादा eager हो, आपको कहीं जाने के लिए बहुत ज्यादा खुश हो, उसके लिए भी have the idiom bells on। I'm waiting for New Year's party with bells on। सिंपल सी बात है, आपने ऐसे याद रखना है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो तो आपने वहां पे जो है बेल्स बजाना स्टार्ट कर दी है। ओके क्योंकि आप कहीं जा रहे हो, बेल बजा बजा के जा रहे हो। सो इसका मीनिंग यहाँ पे है when you're delighted and eager to go somewhere। 290 is eat, sleep and breathe something। eat, sleep and breathe something, इसका मीनिंग है being so enthusiastic and passionate about something that you think about it all the time। आप बहुत ज्यादा enthusiastic हो या passionate हो किसी चीज के लिए और आप हमेशा उसके बारे में लगातार सोचते रहते हो। okay so for that we have the idiom eat, sleep and breathe something। okay usage is I have recently joined art class, these days I eat, sleep and breathe art only। मैंने recently art class को ज्वाइन किया है और इन दिनों मैं सिर्फ जो है आर्ट जो है वही मैं यहाँ पे उसी के बारे में सोचती हूँ, उसके बारे में एंथुजियास्टिक हूँ, उसके बारे में पैशनेट हूँ। ओके सो नेक्स्ट इडियम इज 291 which is explore all avenues। एक्सप्लोर ऑल एवेन्यूज का मीनिंग क्या होता है, ट्राइंग आउट एवरी पॉसिबिलिटी टू गेट अ रिजल्ट। हर पॉसिबिलिटी को आप ट्राई कर रहे हो ताकि आपको एक रिजल्ट मिल जाए। व्हाट इज द यूसेज, यूसेज इज इट इज अ डिफिकल्ट टास्क बट इफ यू रियली वांट इट डन वी मस्ट एक्सप्लोर ऑल एवेन्यूज। ये डिफिकल्ट टास्क है बट अगर हम हर पॉसिबिलिटी को ट्राई करेंगे हमें जरूर इसका रिजल्ट मिलेगा। हर चीज को हम एक्सप्लोर करेंगे। ओके हर चीज को एक्सप्लोर करेंगे, क्यों, ताकि हमें एक रिजल्ट मिल जाए। ठीक है हर चीज को एक्सप्लोर हम करेंगे। 292 इज वेटिंग इन द विंग्स। वेटिंग इन द विंग्स मीन्स वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू टेक एक्शन, मोस्टली टू रिप्लेस समवन एल्स इन हिज जॉब। वेटिंग इन द विंग्स, जैसे वेटिंग लिस्ट में अगर कोई होता है, क्यों होता है, ताकि उसकी जॉब लग जाए, सिंपल। सो वेटिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना ताकि आप उसका एक्शन ले पाओ, मोस्टली किसी को रिप्लेस करना उसकी जॉब में। यूसेज एज अ प्रिंसिपल रिटायर्स इन अ ईयर, 2 of our senior teachers are waiting in the wings for candidature। सो कह रहे हैं जैसे ही हमारा प्रिंसिपल रिटायर होने लगा है तो अभी 2 जो हमारे सीनियर टीचर्स है वो लाइन में लग गए हैं ताकि उनकी उस पे जॉब लग जाए। 293 separate sheep from goats। separate sheep from goats which means examining a group of people and deciding their suitability। एक ग्रुप ऑफ पीपल को आप डिसाइड कर रहे हो, एग्जामिन कर रहे हो और देन आप उसकी सुटेबिलिटी को डिसाइड कर रहे हो कि ये कहाँ पे जाएंगे। सो आप सेपरेशन कर रहे हो, सेग्रीगेट कर रहे हो। सो सेपरेट शीप फ्रॉम गुड्स का मीनिंग है एग्जामिनिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड डिसाइडिंग देयर सुटेबिलिटी। व्हाट इज द यूसेज, यूसेज इज द स्टेज 2 ऑफ द एग्जाम वाज कंडक्टेड टू सेपरेट शीप फ्रॉम गोट्स। ओके स्टेज 2 जो एग्जाम का होता है वो इसलिए कंडक्ट हुआ ताकि हम वहां पे ग्रुप ऑफ पीपल को एग्जामिन कर पाए और हम उनकी सुटेबिलिटी को डिसाइड कर पाए। ओके 294 इज प्लम जॉब, वेरी इजी। प्लम जॉब क्या होता है, प्लम जॉब का मीनिंग है डिजायरेबल पोजीशन विच इज वेल पेड एंड कंसिडर्ड रिलेटिवली इजी। एक ऐसी डिजायरेबल पोजीशन जिसमें आपको पैसे भी मिल रहे हैं, एक ऐसी जॉब जिसमें आपको पैसे अच्छे मिल रहे हैं और वो कंपैरेटिवली जो है इजी भी है। ठीक है वो रिलेटिवली इट इज क्वाइट इजी। सो व्हाट इज द यूसेज, यूसेज इज दिस लुक्स लाइक अ प्लम जॉब बट इट हैज इट्स ओन बंच ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। आपको लग रहा होगा कि ये प्लम जॉब है बट इसके भी अपने कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो प्लम जॉब होता है एक ऐसी जॉब जिसमें वेल पेड हो और वो रिलेटिवली आपकी इजी हो।
295 इज गेट द एक्स। गेट द एक्स का मीनिंग क्या है? लूज द जॉब। जब जॉब किसी की चली जाती है उस केस में वी कैन यूज द इडियम गेट द एक्स। ड्यू टू कोविड-19 a lot of employees got the axe। कोविड-19 की वजह से बहुत लोगों की जॉब चली गई थी। इन दैट केस we can use the idiom get the axe। 296 is deadwood। deadwood का मीनिंग क्या होता है? deadwood means people or things which are no longer useful or necessary। ठीक है, dead है मतलब कोई यूजफुल नहीं है। सो ऐसे लोग या ऐसी चीजें हैं जो कि कोई लॉन्गर यूजफुल में नहीं है और जरूरी भी नहीं है। सो यूसेज इज वी नो लॉन्गर नीड द डेड वुड as we have ordered the new computers। हमें ये डेडवुड, हमें ये पुराने ओल्ड कंप्यूटर्स नहीं चाहिए हैं क्योंकि ये कोई यूजफुल नहीं है, हमने ऑर्डर न्यू कंप्यूटर्स कर दिए हैं। सो 297 इज बैकरूम बॉयज। बैकरूम बॉयज जो है इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है? पीपल हु परफॉर्म इंपॉर्टेंट वर्क बट दे हैव नो कॉन्टेक्ट विद द पब्लिक। देखो बैकरूम बॉयज वो होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट वर्क को परफॉर्म करते हैं लेकिन उनका पब्लिक से कॉन्टेक्ट नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए भी हैव द इडियम बैकरूम बॉयज। So usage is our backroom boys at the TV station deserve this innovation award। जो हमारे backroom boys हैं टीवी स्टेशन में उनको ये innovation award वो deserve करते हैं। So backroom समझ लो पीछे वाले रूम में है और पब्लिक के साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं है बट वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं। 298 is fine tooth comb। फाइन टूथ कूम। फाइन टूथ कूम का मीनिंग है एग्जामिनिंग समथिंग केयरफुली नॉट टू मिस आउट एनी डिटेल। ठीक है, कोई भी चीज आप बहुत अच्छे से एग्जामिन कर रहे हो ताकि कोई भी डिटेल मिस आउट नहीं हो जाए, उसके लिए भी हैव द इडियम फाइन टूथ कूम। बट इज द यूसेज इज द बॉस एग्जामिन्ड माई रिपोर्ट विद अ फाइन टूथ कूम बिफोर सबमिटिंग इट टू द बोर्ड। जो बॉस है उन्होंने मेरी रिपोर्ट को एग्जामिन किया फाइन टूथ कूम के साथ, मतलब हर एक डिटेल को उन्होंने एग्जामिन किया ताकि कुछ मिस आउट नहीं हो जाए बिफोर सबमिटिंग इट टू द बोर्ड। 299 इज एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट जो है इसका मीनिंग क्या है? प्रूव्स द इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग। जब हम किसी चीज की इफेक्टिवनेस को प्रूव करते हैं उसके लिए भी हैव द इडियम एसिड टेस्ट। ओके, जैसे यूसेज इज आई प्रैक्टिस्ड हार्ड फॉर द ग्रुप परफॉर्मेंस बट द एसिड टेस्ट विल बी द असेसमेंट ऑफ माई सोलो परफॉर्मेंस। मैंने अपने ग्रुप परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी लेकिन जो एसिड टेस्ट इट मीन जो इफेक्टिवनेस जो देखी जाएगी किसी चीज में वो कहाँ पे देखी जाएगी? मेरे सोलो परफॉर्मेंस को असेस किया जाएगा। सो एसिड टेस्ट क्या होता है? जब आप एसिड टेस्ट का मतलब है आप किसी की इफेक्टिवनेस को प्रूव कर रहे हो। ओके, सो एसिड टेस्ट का मीनिंग है प्रूव्स द इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग। सो अ लास्ट इडियम नंबर 300 इज ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड जो है इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है क्लेवर और एक्सपर्ट वे ऑफ डूइंग समथिंग। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड का मीनिंग है क्लेवर या फिर एक्सपर्ट वे जो किसी चीज को करने का है, उसके लिए भी हैव द इडियम ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। यूसेज इज बीइंग अ सेक्रेटरी फॉर अ डेकेड ही नोज द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड इन पॉलिटिक्स। वो जो इस डेकेड क्या होता है? डेकेड होता है 10 ईयर्स के पीरियड को हम बोलते हैं डेकेड। ओके, वो सेक्रेटरी रहा है 10 सालों के लिए, उसे पॉलिटिक्स की ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड जो है पूरा पता है, मतलब वो बहुत ज्यादा क्लेवर है, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है किसी भी चीज को करने के लिए। तो ट्रिक्स ऑफ द उसको सारी ट्रिक्स पता है। ओके, सो वी विल एंड द लेक्चर with the word of the day. So let's move to our next slide. So our word of the day is, wait a minute. So our word of the day is rapport. Rapport का मीनिंग क्या होता है? A relationship of mutual understanding और ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट बिटवीन पीपल। जब दो लोगों के बीच में ट्रस्ट होता है या एग्रीमेंट होता है उस चीज को हम बोलते हैं रैपो बिल्डिंग। ओके, रैपो यूसेज इज he established a good rapport with the boss। उसने अपने बॉस के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप जो है वो उसने बनाया है। सो जब उस चीज को, जब लोगों के बीच में ट्रस्ट और एग्रीमेंट का रिलेशनशिप होता है उस चीज को हम बोलते हैं रैपो। ओके, सो आई एम गिविंग यू द होमवर्क। व्हाट इज द आंसर टू द इडियम ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड? ओके, और आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। ओके, थैंक यू एवरीवन।